Good morning, dear students. Today, 27th September 2021, we are doing our worksheet number 34 based on chapter motion, and today we will discuss about distance, दूरी, displacement, विस्थापन and speed, चाल. When an object changes its position with respect to other object along with time, this state of an object is called motion, or change in the position of an object with time is called motion. जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वस्तु की इस अवस्था को हम गति कहते हैं. In physics, there are two states of object, stationary and in motion. उदाहरण के लिए, अगर हम एक बिल्डिंग या इमारत के पास खड़े हैं और कुछ समय के बाद हम चलते चलते उससे दूर आ गए हैं तो हमारी समय के साथ स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है यह गति कहलाता है. और अगर हम उसी इमारत के पास कुछ समय तक खड़े रहते हैं, मीन्स हमने समय के साथ अपना स्थान नहीं बदला है, तो वह स्थिति स्थिर अवस्था कहलाती है. In physics, there are two states of object, stationary and motion. When an object does not change its position with respect to other stationary object, the object is said to be rest. Example, tree, pillar, building, etc. When an object changes its position with respect to other stationary object, the object is said to be in a motion. Example, walking, moving car, etc. Generally, motion is of three types: linear motion, oscillatory motion and circular motion. Linear motion और रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति. जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर गति करती है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं. When an object moves along a straight line. Example, an athlete running on a straight track, a sliding door, etc. Second, oscillatory motion, दोलन या आवर्त गति. जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर एक ही निश्चित पथ पर गति करती है तो उसे हम दोलन या आवर्त गति कहते हैं. ऑसिलेटरी मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. उदाहरण के लिए, अ स्विंगिंग पेंडुलम, अ ट्यूनिंग फॉर्क. थर्ड, सर्कुलर मोशन, घूर्णन या वृत्तीय गति. वह गति जिसमें वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करता है उसे हम घूर्णन या वृत्तीय गति कहते हैं. When an object moves in a circular path. For an example, a stone tied to a string, motion of a wheel. Now, that linear motion, motion along a straight line, सरल रेखीय गति, is the simplest type of motion. To describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. मूल बिंदु. The reference origin point of an object decides whether the object is in motion or at rest. तो बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई भी एक इमारत है या एक पेड़ है जिसको हमने एक मूल बिंदु मान लिया या पॉइंट ऑफ ओरिजिन मान लिया. Whenever an object moves from its reference point, it covers a distance in a time interval. और अगर कुछ देर के बाद हम उस इमारत से आगे चले गए थोड़ा, तो समय के साथ साथ क्या हुआ, हमने गति कर ली, मतलब मोशन इसको कहते हैं. Whenever an object moves from its reference point, it covers a distance in a time interval. और कितने समय में वो कितना डिस्टेंस कवर किया है.
द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो बच्चों दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है? दूरी हम कहेंगे एक वस्तु द्वारा तय की गई निश्चित पथ के माप को हम दूरी कहेंगे। और वो किस तरह की राशि है? वो एक आदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। The length of the actual path traveled by an object is called distance. It is a scalar quantity. It is always positive and cannot be zero. यह राशि बच्चों हमेशा ही धनात्मक रहेगी, कभी भी वो शून्य नहीं हो सकती। As per SI system, it is measured in meter. इसकी SI यूनिट क्या है डिस्टेंस की? मीटर। The distance traveled by an object from its initial position to its final position is called total distance. और पूरी की पूरी दूरी, कुल दूरी कितनी है कि उसने कितने समय में कितनी दूरी तय की है। Whereas the shortest distance between the initial position to the final position is called displacement. तो displacement means विस्थापन, कि किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी, मीन्स कि जो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हम उसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और ये एक कैसी राशि है? यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स सदिश राशि है। डायरेक्शन इज ऑल्सो देयर। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। तो ये ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। और इसकी भी SI यूनिट क्या होगी? मीटर। तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम में हमें A से B तक की दूरी कितनी दी हुई है? 3 मीटर्स। फ्रॉम B to C इट इज़ 4 मीटर्स। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस A to C मीन्स 3 + 4 वी गेट 7 मीटर्स। और अगर हम विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको अगर A से C तक पहुंचना है, ये डिस्टेंस कवर करना है, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और हमने मैथ्स में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है। वो क्या होता है? उसमें हम बेस, स्क्वायर ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर गिव्स अस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। स्क्वायर ऑफ बेस, दिस इज़ 3 मीटर स्क्वायर, प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, this is 4 meter square. We get 3 square is equals to 9 plus 4 square is equals to 16. 16 plus 9 we get 25. 25 then 25 square 25 meter, then we get 5 meter answer. तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी 5 मीटर हुई एंड जो टोटल डिस्टेंस था वो कितना हुआ? 7 मीटर्स। तो दोनों में डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो बच्चों स्पीड को हम क्या बोलते हैं? चाल। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। एज पर SI सिस्टम इट इज़ मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या है इसकी? मीटर पर सेकेंड। इन मोस्ट ऑफ द कंडीशंस एन ऑब्जेक्ट यूजुअली मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। द स्पीड ऑफ सच एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड इन दिस वे। तो बच्चों आपको पता है कि कोई भी एग्जाम्पल के लिए एक कार है, अगर वो एक रोड पर ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है, तो आप क्या देखते हो? उसकी जो स्पीड है वो हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती। अगर ट्रैफिक है तो उसकी स्पीड कम भी हो जाएगी, अगर ट्रैफिक नहीं है, रोड स्मूथ है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। तो हम
एक कार की स्पीड कैसे निकालेंगे? तो हम कार की स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड देखेंगे कि उसने पहले घंटे में कितनी दूरी तय की, दूसरे में कितनी तय की, तीसरे में कितनी तय की। इट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम कितना लिया है उस गाड़ी ने। पहले घंटे में उसने पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा। तो हमें अगर औसत चाल निकालनी है या एवरेज स्पीड निकालनी है तो हम कैसे करेंगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। The state of motion of an object can also be determined by its distance time graph. The distance time graph of an object shows its speed. तो अब हम अपने थोड़े से ये जो ग्राफ्स दिए हुए हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट ग्राफ है इट इज़ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है पहले बच्चों ये जान लेते हैं कि इक्वल डिस्टेंस कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग दैट स्ट्रेट लाइन। तभी होगा पॉसिबल कि इक्वल डिस्टेंस कवर हुआ है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। एग्जाम्पल के लिए अ व्हीकल रनिंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 meters, it will covers a distance of a vehicle running with constant speed of 10 meter per second, it will cover distance of 10 meters in every second। तो हमारे पास इसका ग्राफ कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है कि जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा टाइम भी इंक्रीज़ होता जा रहा है इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट? यस, नाउ कम टू सेकेंड ग्राफ। आवर सेकेंड ग्राफ इज ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर हम बात करें अपने सेकेंड ग्राफ की तो दिस इज़ अवर एक्स एक्सिस जिसमें हमें टाइम बताया हुआ है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस वहीं का वहीं है। जो हमारा ये डिस्टेंस था समझ लो 2 meters है या जितना भी है, टाइम के साथ साथ कि पहले घंटे भी गाड़ी वहीं थी, दूसरे घंटे भी गाड़ी वहीं थी। मीन्स कि उसका जो ये डिस्टेंस है ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। तो हम इसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। देन कम टू अवर थर्ड ग्राफ, इट इज़ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? आप यहाँ पर देख रहे हो कि डिस्टेंस अनइक्वल है कि कभी वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है गाड़ी या कभी कम कर रही है। मीन्स कि टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें कि जैसे पहले घंटे गाड़ी ने अगर 300 meters कवर किए हैं तो दूसरे घंटे में गाड़ी ने 500 meters कवर किए हैं। मतलब यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम इसको क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दिस इज़ ऑल अवर वर्कशीट। नाउ चेक योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन में हमें डिफरेंस बताना है। तो दूरी हम किसे कहते हैं? एक वस्तु द्वारा तय किए गए निश्चित पथ के माप को दूरी कहते हैं। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमारा आंसर यहाँ पर है। It is a scalar quantity. It is always positive and cannot be zero and its SI unit is meter. और displacement क्या होता है? The distance traveled by an object from its initial position to its final position, the shortest distance। तो हमें displacement में ये point याद रखना है
कि जो विस्थापन है वो किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी है। और ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। सेकेंड क्वेश्चन, अ कार, ये न्यूमेरिकल है एक छोटा सा। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 meters in 5 seconds, then another 20 meters in 3 seconds। तो हमें यहाँ पर औसत चाल निकालनी है, एवरेज स्पीड। और आप बच्चों को पता ही है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। दिस इज़ एवरेज स्पीड फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है हमारे पास? पहला पॉइंट ये गिवन है कि 20 मीटर्स का डिस्टेंस उसने कितने समय में तय किया? 5 सेकेंड्स में। और सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है कि 20 मीटर्स का डिस्टेंस उसने कितने समय में तय किया? 3 मीटर्स, 3 सेकेंड्स में। तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 20 + 20, 20 + 20 इज इक्वल्स टू 40 मीटर्स। और टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास? 5 सेकेंड्स प्लस में 3 सेकेंड्स, वी गेट 8 seconds. Then according to formula, total distance 40 divided by 8, we get 5 meter per second. तो ये हमारा छोटा सा न्यूमेरिकल था। तो एवरेज स्पीड क्या हुई? 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स SI यूनिट। तो स्पीड क्या होती है? व्हाट इज स्पीड? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी स्पीड कहलाती है। हमारा आंसर जो है, इट इज़ हेयर, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। एंड अवर लास्ट क्वेश्चन, इन द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ of the 3 objects ABC, which one is moving faster? तो ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है। हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स का ग्राफ है, A, B एंड C। और यहाँ पर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है एंड दिस इज़ अवर टाइम। तो हम तीनों को कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं जो हमारा A ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस तो सबसे मैक्सिमम है और टाइम टेकन सबसे कम है। और इसके अकॉर्डिंग हमें मूविंग फास्टर निकालना है, मतलब स्पीड किसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी ज़्यादा है, टाइम कम है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वी गेट फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट इज A। दिस इज़ ऑल अवर वर्कशीट। उम्मीद है आप सभी बच्चों को वर्कशीट बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। और अब हम अपनी अगली वर्कशीट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।